तो पहली गेंद इस वक्त आने को है इनिंग्स की। स्विंग वही देखी भाली, आउट स्विंग मंझा हुआ। नामवर अंपायर आपके सामने नहीं होता तो खिलाड़ी ज्यादा बड़ी अपील करते हैं। अच्छा कट किया, लेट खेलने में कामयाब हुए। और एक मरतबा फिर आगे निकल के ऊंचा खेलना चाहते थे, लेकिन किस्मत के धनी बन गए हारिस। पूरी कोशिश की उछल के स्लिप में इस गेंद को कैच करने की मुबस्सिर ने, लेकिन बेसूद 4 रन। पुल शॉट खेला सेंसेशनल हारिस। फिर हवा में और हाथों में भी लाजवाब कैचिंग बट की जानिब से मिड ऑफ पर। चौका कंसीड करने के बाद अपने भारी दिल से गेंद करने के लिए आए थे, लेकिन अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल करना चाहते थे, अबूर करना चाहते थे मिड ऑफ को। अमाद बट ने शानदार डाइव लगाते हुए किसी परिंदे की मानंद उचक लिया। हारिस को जाना पड़ेगा। अच्छा टाइम किया, यहां पर 3 रन मिलने चाहिए। बाबर और उनके साथ शान को किसी तरह की मुश्किल पेश नहीं आई और मौका मिल गया। खुली छुट्टी थी बाबर आजम के लिए। कट शॉट खेला सीधा हाथों में और ये विकेट नंबर 2 अली रजा के लिए। नौजवान अली का तूती बोल रहा है फैसलाबाद में। कहां थे इससे पहले कि जहां पर उन्होंने पहली मर्तबा गेंद की और ये जो प्लान बनाया उस पर एन पूरा उतरे। इनके साथी अरफात मिनहास, इन्हीं के शहर से ताल्लुक रखने वाले अरफात ने विकेट लिया और फिर देखिए तो वो जज्बा और जोश। फुल शॉट खेला और कैच आउट हो गए। इस बार बाबर आजम, रिजवान महमूद है फील्डर और हसन ने ये कामयाबी मुमकिन बनाई। इस तरह यके बाद दीगरे 2 विकेटें गिरी और बहुत से दिल टूट गए यहाँ इनक्लोजर्स में भी। और ना सिर्फ ये कि एलाइट बैंक स्टैलियंस बल्कि फैसलाबाद के इस तकरीबन कैपेसिटी क्राउड का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया, क्योंकि शॉर्ट बॉल को जिसमें सब कुछ दस्तयाब था ऊंचा खेलने के लिए, लेकिन सिर्फ वो उठान ना दे सके। सबसे बड़ा धचका आज की शाम को एलाइट बैंक स्टैलियंस को। बाबर आजम गए 37 पे 3। एक अच्छी इनिंग्स खेल के बारी हासिल करें। शॉर्ट गेंद सही तरह बल्ले पर नहीं आई, लेकिन रन्स मिल गए 4। Just like Sarfraz's as well. That's the big shot and it has cleared the fence. Tayyib Tahir, no half measures into the terraces. Hussain has gone big and that's gone all the way. What a magnificent strike from Hussain Talat. Down the wicket. That's a good, nice hit for a maximum. Flat batted that in front of the square on the onside for a boundary. He's hit it hard. Tayyib Tahir. Oh, he's beaten that short. Fine. Bad line from Ahmad. Starting the over from Saim Ayub with the boundary. These two are really carving. Well, he'll rectify it in this case, and he'll rectify it so well that it's going to go for a 4. Arafat Minhas will continue, and that is 50 for Tayyib Tahir. He's come at a slow pace, but he has been the pillar for ABL Stallions today. After the fall of 3 quick wickets, he came in and he gave them the much needed stability. And slashed away this time, cut away for a boundary. A perfect blend. Presentation is the key. The way they look at, they make it look, it's even more delicious by the looks of it. Yeah, I know. This part of the world, in our part of the world, subcontinent. Gone back to the pavilion. He goes down on one leg and he makes the connection. That's what he does best. Hands. In the air, just away from the fielder. Will come back for a second. Close shave there for Tayyib Tahir. Again, cut away towards offside, and that will race away for another boundary. Slog sweep.
earn him runs. Boundary. Tayyib Tahir is looking good. 127 of 143 deliveries. Use of feet once again on the very first delivery of the over. Down the ground, 4 runs. They've almost completed 80 runs. A decent stroke once again. He had to cover a lot of ground, and 50 up for Hussain Talat. Silently, he has been the action man for Elite Bank Stallions, trying to take it deep. Second 50 of the tournament for Hussain Talat. Oh, now they're pushing for 2. It's just, oh, it's gone through. The pressure of the 2 running together. Now they'll get 3. They've got the dimensions of this ground at the back of their mind. Oh, almost went after it, but then pulls away. It was very high. What's the square leg umpire's call on that? What is Hasnain asking about? Oh, he's asking to go hit the ball on the stumps. That's a good sharp delivery. And he's done well to stay out of it. Now he's frustrating. They're trying to get under his skin. A good over for Lake City Panthers. 16 to go, 188 for 3. Reverse sweep finally by Tayyib Tahir. And 1 bounce, eluding Usman. Second lapse by Usman Khan. Usman not to cut it off. Down the wicket was an opportunity. You can't drop that. The keeper without the gloves. And he's taken it. Finally, the partnership comes to an end. The boundary off the reverse sweep. Strong use of feet, but in no position to play that shot. And then Usman Khan is compensated for those 2 lapses in the field. And massive celebration. That was in the air for a while from Tayyib, but that's going to go for a boundary. As much as they can. And this is played towards fine, and it goes really fine. Hasnain has no chance. Another boundary. Oh, he made a shift and put it towards the leg side. That will race away for 4. He cuts it away. He cuts it away, and he gets that single, and he gets to his century. Tayyib Tahir, his 6th century in his List A career. The Faisalabad crowd is on their toes. Applause from the dressing room. Oh, he places this towards the leg side and is going to go for a boundary. Adil Amin getting into the action. Good comeback. Inside out, एक और सनसनीखेज शॉट और आसानी से पार किया बाउंड्री को। हाँ में खेल बैठे और विकेट मिल गई। फॉलो किया यहाँ तैयब ताहिर को अराफात ने। हाफ एंड हाफ उनका पांव गिरा था, आखिर में ये चिप्स सा कर बैठे। बड़ा शॉट खेला और ये बुलंदो बाला 6 और बड़ी आसानी के साथ इसे सलाखों के पार उतारा। उम्दा फुटवर्क, लाजवाब टाइमिंग। हसनैन वहां से दौड़ते हुए आए, लेकिन उनकी कोशिश रायगा गई और बोल्ड हो गए। मिड विकेट को हदफ बनाया था आदिल ने, लेकिन हसनैन ने उनकी ऑफ स्टंप को बिल्कुल जड़ में गेंद किया, ऑफ स्टंप की। सही बिल्कुल डिलीवरी है और ऑफ स्टंप पे जा लगी बॉल। बड़ा शॉट लगाने गए थे, पिछले ओवर में 17 रन मिल गए थे। पहला ही बॉल बल्ला घुमाया आदिल ने। जावेद मियांदाद का नाम इसलिए बार बार हम लेते हैं, तो मुश्किल रन बनाते थे टीम के लिए। एक बार फिर एक जारहियत दिखाई हसनैन ने, जो कि फास्ट बॉलिंग। स्लोअर बॉल था और बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट के पास हल्का फुल्का चांस आया था कि वो इसको कैच करें। 4 रन हासिल हो जाएंगे यहां पर। अच्छी गेंद, बड़ी तेज गेंद थी। बल्ले को लगी कि नहीं, अंपायर का फैसला बताएगा। जी हां, बल्ले को लगी है। ये सही लगी नहीं है, आउट हो जाएंगे और हो गए।
यहाँ राइट हैंडर होकर विद द स्पिन खेलना चाहते थे, लेकिन आखिर में अगली बॉल खेल दी ऑन साइड की तरफ, 1 और 4 हासिल कर लिए जहांदाद ने। चले बल्लेबाजों के खिलाफ अपने पूरे करियर में, और इसलिए एक और विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज की जहांदाद खान। अब ये तो होना ही था, बिकॉज जहांदाद ने पहले ही फैसला कर लिया था कि अब बड़े शॉट्स लगाने हैं। अबरार आए हैं जमान का साथ देने के लिए, और ये अच्छा शॉट लगाया सामने की जानिब। वहां 2 फील्डर्स पहुंचने के लिए कोशां थे, और ये बड़ा शॉट 6 हासिल होना चाहिए, और हो गया। सिर 2-2 विकेटें अली और हसनैन की, और एक और बड़ा शॉट। इस बार अबरार अहमद की बारी। मुखालिफ टीम भी महसूस होती है, और एक और बड़ा शॉट खेला, और गेंद गई सीधी सीढ़ियों में। जमान खान ने तीसरा छक्का लगा दिया, और फिर से स्विंग किया। गेंद खाली जगह पर गिरेगी, और हसनैन को मौका दिए बगैर बाउंड्री के पार उतर गई। आहा, क्या बात है, कहां थे छुपे हुए जमान और अबरार। 300 भी मुकम्मल हो गया तारिक सईद साहब। अबरार ने स्कूप किया, और गेंद विकेट कीपर के बमुश्किल सामने जा सकी, और बड़ा शॉट खेला, लाजवाब हिट। एक और छक्का जमान खान का। आहिस्ता गेंद थी, और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, और मौका नहीं दिया लॉन्ग ऑन को। और मजेदार बात यह है तारिक साहब कि अब 1 ओवर जो बचा है इसके बाद वो मुबस्सिरों का रना होगा, क्योंकि हसनैन के ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। ओहो, ये तो चांस बन गया यहां पर। गेंद आई नहीं सही तरह बल्ले पर, और आउट हो गए जमान खान। हमाद जो है उनने फिर से यॉर्कर किया, वही काम आया। अच्छा कैच पकड़ा दबाव में बंगल सही ने, लेकिन जमान खान ने अपनी बैटिंग की चमक है वो दिखाई है। फिर से रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर, यहाँ रन आउट का मौका, और ये मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा। रन आउट हो गए यहाँ अली, और पैंथर्स ने उम्मीदों के बरक्स जो है वो अपसेट किया स्टैलियंस की बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप को आज फैसलाबाद में। जी हाँ, स्टैलियंस की बड़ी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन आज जो 3 विकेटें ऊपर से गिर गई, कप्तान हारिस, फिर शान मसूद और बाबर आजम जो कि इन फॉर्म है, वो जब जल्दी आउट हुए और 37 पे 3 आउट हो गए, तो सिलसिला वहां से डगमगा गया और गड़बड़ा गया।